Okay, let me share my screen. Okay. तो अभी अपने लोग क्या करते हैं ना, we just go by this. ओके, तो इससे पहले कि हम इंडिकेटर के बारे में बात करें, उससे पहले एक बार लेट्स हैव अ रीलुक एट द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड. Anybody can explain what is adaptive relativity? जो भी आपकी समझ में आता है, जो भी गलत सही, doesn't matter. Just because the objective is to see if there is any gap in the knowledge, right? Knowledge gap है नहीं, है तो कोई बात नहीं, we'll correct it, we'll cover it, but let me know. कि आपने So can I try? या sure बिल्कुल. So Uh, ये आपका static relativity is from that point which we have taken of July 23. I don't remember the date it's there, exactly. 20th July Yeah, 2023. 20th July 2023. So from this point, you are measuring against the Nifty. Correct. And for adaptive relativity, is it from what is happening at this particular point and not necessary with reference to a starting point? It is just opposite. So what you told from a starting point, from a fixed starting point, is adaptive because we are adapting to that particular date every day, right? And SRS is a static where the length is static. So we are looking at it from a perspective of the period. If that period is a static, like 123 days, which is 6 months, that is a static. But if it is changing and adapting to the start date, then it is adaptive. Does that help, Balvijay? Okay, thank you, sir. Okay, so let me show it in the. So don't look at the indicator right now. But suppose this is the starting date. If you see here, 20th July is there, which is an input to the indicator. But let me put it here on the graph. So if I put it here, and thanks, Balvijay. Uh, Participation is very important, and this was very basic question. If you guys not answering, that is my failure, and I don't want to fail. Anyway, without proper knowledge, we cannot get success. Okay, so if I take this point to the extreme left and let me hide this extreme left, and then I compare it with Nifty. And let me make Nifty as let me red as a reference or the borderline. So suppose I look at 24th November. So when I look at 24th November here, or any other any date, let me put this thing. So what is happening is if we started the race at the same point, it is like a race, right? So we all start race from a 0 point, from the same point. So Nifty started from the same point. You started at the same point. So U means it's stock. Where are we on a particular date from that date? What is the performance? So for example, if I let me go to the current date here, which is 17th January, which is the last trading day. So since that is starting point, that's why you see here both are at the same level. You see that they are the joint together. It's same starting point. But then your Nifty performed this way, your stock performed this way in terms of percentage profit, right? So yeah,
Somebody saying something? Okay. So till say till 4th June, uh, if I was looking on 4th June, whether I am doing better than Nifty, my stock is performing better than Nifty or not, as on 4th June, my answer was we have performance is similar, right? Because you see both are at the same point here. Not exactly, but very, very close. But as of now, on 17th January 25, my stock performance is much, much better than Nifty because Nifty has returned me, if you see on the right hand side, 17.90%. तो मैंने अगर 100 रुपया खर्च किया था तो अभी वो 117 रुपये 90 पैसे बन गया, है ना। लेकिन अगर मैंने स्टॉक खरीदा था तो फिर वो 165 रुपये 9 पैसा बन गया। तो बेसिकली माई परफॉर्मेंस इज my profit return is 65%, whereas Nifty return is only 17.9%. So I have performed better than Nifty till date from that starting point. So this is adaptive relativity. That's one of the parameter that we use to check how we are doing as comparison to an index or some other stock. In our case, it is always an index. It could be Nifty in most of the cases as a standard, but it could also be mid cap index or small cap index or um, this thing large cap index. Large cap index is very, very close to Nifty 50. Okay, यहाँ तक सही है? कोई क्वेश्चन? तो चलिए अब इसमें आगे एक चीज ये सोचते हैं कि how does this help? I mean, I have already answered this, but I would like to hear from all of you or some of you. Uh, what is the benefit of measuring this way, the performance measurement this way? Anybody? Anyone? Sir, can you repeat the question, please? हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ रिलेटिवली मैं देख रहा हूँ मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही एज कम्पेयर टू निफ्टी और एनी इंडेक्स, है ना। तो इसका फायदा क्या है, मतलब हाउ डज इट हेल्प मी? Sir, so basically, we are considering those stocks that are beating Nifty 50, the index. So basically हम उसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं जो मतलब कि निफ्टी 50 को बीट कर रहा है। सो ये हमारी काइंड ऑफ फिल्टरिंग भी इजी कर देगा एंड कैन वी कैन इजीली मूव टू नेक्स्ट स्टेप। Right. Yeah, thank you. Pallavi ji, you were saying something? What he answered was right, and also if you can periodically keep checking if you're doing better than Nifty. Correct. So it helps to do that periodic evaluation of the performance, है ना। जैसे every quarter you can, है ना, जब results आते हैं आपके stock के, then you can see उसका impact। ऐसा तो नहीं है कि मेरी relativity जो है वो डाउन हो रही है, relative strength की वो relatively weak हो गया है। Then it also helps you to take that booking decisions or exiting decisions, entry and exit decision, adding more और exit partially और exit fully, ये सारे डिसीजन आपको लेने में हेल्प करेगी ये चीज़, है ना। लेकिन वही है कि वो पीरियड क्या होगा। सो लाइक ट्रेडर क्या करता है ना, वो हर दिन परेशान है इस चीज़ को लेके कि अरे आज नीचे चला गया, आज ऊपर चला गया। बट इन आर केस, if you have studied that company's fundamentals, and that is one of the sector which is upcoming sector, and not only this year but in so many years, coming years, for example data centers, है ना। data center कोई आज की चीज़ नहीं है। data center आज से 5 साल बाद भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, हम जानते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में हैं और वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपने चेक किए हुए हैं, देन क्वार्टरली बेसिस पे भी आप उतने परेशान ना हो, ज़रूरत नहीं है। आप अगले क्वार्टर का भी वेट कर सकते हैं इन केस। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ देखिए, इफ़ यू स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, इसने थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन किया, है ना, रिलेटिवली वीक हो गया, रिलेटिवली वीक हो गया। और लेकिन इस क्वार्टर में इसने
बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया और फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर से ये ऊपर जाता है, बट नेट आप प्रॉफिट में ही है। तो अब एग्जिट कहाँ करना है, ऐड मोर कहाँ करना है, दिस कैन नॉट बी फिक्स्ड। दिस इज बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। आपका क्या एक्सपीरियंस है मार्केट को लेके, आपका क्या कन्विक्शन है उस स्टॉक को लेके, उन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। हम इन सब चीज़ों का आंसर यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने के लिए लेंगे। तो अ, एक हो गया कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से परफॉर्मेंस को टिल द डेट देखा और वो मुझे बता रहा है कि हाउ हाउ एम आई डूइंग। ऐसे इट इज़ समथिंग लाइक दो लोगों ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, दो बच्चों ने, और आज वो हाई स्कूल में है और मैं पूरा ट्रैक देख रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, कैसा 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 परफॉर्मेंस इनका रहा। एंड उसके बेस पे मैं ये एक मैट्रिक्स निकाल के ला रहा हूँ कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, so this is ARS where it is adaptive to that particular starting point. आगे चलते हैं। अब बात करते हैं SRS की। तो वी ऑल्सो नीड एन एडिशनल पैरामीटर जहां हमें ये देखना होता है कि नाउ दिस इज बैकवर्ड, अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड है ना, हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट में था और मैं राइट साइड में करेंट डेट तक आया, है ना, या बीच में भी कहाँ था मैं चेक कर सकता हूँ, बट आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो बेसिकली आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस वे, है ना। आई एम मेजरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज ऑन द लेफ्ट टू द राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट SRS, it is the right to left. So right to left means it is a starting point is predicted. No, this is not the starting point, but it is calculated by referring this as the pivot, and then we go back, say 123 days. Why do we say 123? For the simplicity, because 123 day is equivalent to 6 months. तो अब मुझे अगर 6 months का परफॉर्मेंस देखना है, सो आई विल टेक 123 बार्स। तो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे मुझे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर डे से और आज तक क्या रहा। मैं उस पर्टिकुलर क्लास में फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हूँ कि नाइन्थ में कैसा परफॉर्मेंस रहा, टेंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा, फॉर एग्जांपल। सो मैं क्या करूँगा, now 123 bar is 6 months from here backward, and then I take this point which is 23rd July as on date. That shows me 6 months का performance. So looking at roto pump, did it outperform index in last 6 months? What is the No. answer? No, right? So मुझे एक एडिशनल मैट्रिक्स मिली कि जहां से हमने शुरू किया था वहां से अगर मैं इन्वेस्टेड हूं तो मैं आई एम डूइंग बेटर। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में बस लास्ट 6 मंथ्स मेरी परफॉर्मेंस डाउन है। वुड आई बी इंटरेस्टेड? नो। I could be interested in this stock but not at this point in time. ये क्लियर है ना। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है कि रोटो पंप आपको हो सकता है आपको अच्छा लग सकता है, बट अभी इसका परफॉर्मेंस पिछले 6 महीने में देखिए, अगर एज ऑन पर्टिकुलर 21 नवंबर में मेरा जो डेल्टा था ना, वो डेल्टा मेरा 23.51% था। यानी कि अगर निफ्टी से मुझे 4.5% का नुकसान हुआ था, तो ये भाई साहब मुझे 27% का नुकसान देके चले गए। इवन नाउ निफ्टी इज गोइंग डाउन, but this is down more than Nifty. So iska rate of this is, and it is unable to get that strength to outperform Nifty since last 6 months. तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है? इज इट helping you to decide whether this is the right time to enter, do a tranche buy or add more, है ना? Certainly it will help you, right? यहाँ तक ठीक है? कोई Yes, इशू? yes.
Okay. Yes. So SRS will tell you about that 6 months journey. And that journey, remember, जो भी हम बात कर रहे हैं वो रिलेटिव बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मॉडल कंप्लीटली रिलेटिविटी पे है ना. इसलिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स नहीं होते, कभी भी नहीं होते. डोंट स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स, बिकॉज अगर आप वहां से शुरू करेंगे देन यू आर फॉलोइंग ए डिफरेंट सिस्टम. वी गिव अटमोस्ट प्रायोरिटी टू रिलेटिविटी, क्योंकि उसमें सब कुछ इनहिबिटेड है, क्या ना. वो अगर कंपनी अच्छा कर रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और वो सब, तो वो वहाँ पे नजर आएगा, है ना. चार्ट सेज एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई that workflow is important. Your first step is the technical. So it is like technical round. जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले ही आपका एचआर इंटरव्यू नहीं हो जाता, है ना. सबसे पहले टेक्निकल राउंड होता है, यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकली आप कितने साउंड. सिमिलरली इन आर मेथड, in our methodology, first step is relativity on technical basis, which is on the chart. So it is based on the chart analysis. So हम लोग अभी first step की बात करें. We will look into fundamentals and financials, but not at the first step. Right? मेरे ख्याल से हम लोग वही follow करते हैं. आगे चलते हैं. So राजा भाई, आपको थोड़ा बहुत तो कैच कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ, ये सब्जेक्ट लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए ना. राइट राइट. राइट. ओके. सो नाउ लेट्स सी. नाउ व्हाट इफ ये जो रेड लाइन है ना, जो कर्व, मतलब दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अप एंड डाउन अप एंड डाउन. सो परफॉर्मेंस इज, अगर मैं इस लाइन को सीधा खींच दूं, यू नो, और I maintain that distance between these two lines and then draw it again here, तो क्या निकल के आएगा वो देखते हैं. अब इसमें आप you just look at which one. Let me see. We are starting from 20 जुलाई. अगर आप यहाँ से देखें 20 जुलाई से, तो you see this ARS line is, yeah, this one. देखिए ARS लाइन का कलर देख रहे हैं, यहाँ पे एक कलर है, ठीक है, दिस कलर. और दिस कलर जहाँ पर ये नीचे गया, यहाँ पर भी नीचे गया, ठीक है, आप देख रहे हैं. It's gone down. ये ऊपर रहा तो ये भी ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर ऊपर चलता रहा, यहाँ पर डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, राइट. ठीक है. तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से इट वेंट अप, ये देखिए ये वाला, इट वेंट अप. तो ड्रॉ कैसे हो रहा है, सेम चीज है, बट इधर जब ड्रॉ हो रही है तो ये ड्रॉ हो रही है with respect to this straight line which is nifty. So this blue line is nifty. And then आपको क्या करना है, आप अगर ओवरऑल जर्नी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिख रही है, लेकिन अगर आप लास्ट पॉइंट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है, विच इज सेम एज दिस, है ना, दिस द सेम थिंग हियर. सो नाउ अब मुझे ये देखना है जो हमने देखा था कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टिल डेट, डिड आई डू बेटर और नॉट. सो अभी एक काम करेंगे, वी विल गो टू, ये मैं बताऊंगा बाद में. लेट्स गो टू सिलेक्टेड. Selected means whatever stock you have selected, है ना. रोटो मैंने सेलेक्ट किया है, रोटो. एंड जस्ट शो मी, अभी तो ऑल ही दिखाएगा, ये मैंने नहीं किया हुआ है. शो मी ऑल, ऑल मतलब ARS SRS एंड one is momentum here. So if you see here in the table, right, this table shows you Nifty से इसने आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है बेस्ड ऑन ARS, है ना. यहाँ पर सॉर्टिंग क्योंकि एक ही कॉलम पे हो सकती है, तो यू सी इट बेस्ड ऑन ARS ओनली. मे बी लेटर आई विल चेंज, गिवन ऑप्शन की सॉर्टिंग आपको कहाँ करनी है. बट राइट नाउ व्हाट यू सी इज निफ्टी रिटर्न्ड 16.14%. तो ये जो है ये आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न परसेंटेज बताता है सिंस 20 जुलाई टिल डेट
Nifty returned you 16.14%, whereas Roto Pump has returned you 59.55%. So clearly, Roto Pump has outperformed if you consider ARS. Now, next column is SRS, which is 6 months. But if you look at 6 months performance, the Nifty is down by 5.21%, but your Roto Pump is down by 14.37%. तो पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस हमने अभी देखी थी, down थी, which is also shown here. If you see this black line, this SRS is below this blue line. So, not a good thing. 6 months, अगर आपका टारगेट 6 months में कुछ कमाने का है, तो वहां पे अभी मैं एस्टैब्लिश नहीं हुआ. This is not the right time where I should enter if my time frame is 6 months. Because अभी तो मैं वहां कमजोर हूं, है ना? अच्छा. Now, by default, there is one more duration. And this duration I have given as an option Y, momentum length. यहाँ पर क्या है ना, आपको you would see 5 values and they're fixed. मैंने यहाँ पे इसको फ्री नहीं छोड़ा है, ठीक है? I have given some numbers. Any idea what are these numbers? Just don't consider 10, but 21, 34, 55, 89, less than 123 because we are already looking into 123. 123 से छोटे ये कौन से numbers हैं? Any idea? These are Fibonacci numbers, Fibonacci number है. right? Fibonacci numbers हैं ये. I should have put 13 in place of 10, right? I should have put 13 in place of 10, but मैंने 10 क्यों रखा है मैं इसको explain करूँगा. But 21, 34, 55 and 89 and then 123 के बाद तो आप देख रहे. तो ये 5 चीज़ें अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा कि यू कैन पुट एनी वैल्यू, तो फिर आपका कोई स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश नहीं होगा. एंड देन वी आर फॉलोइंग अप फिबोनाची नंबर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, और हम जानते हैं कि वो काम करता है मोस्टली केसेस में. 55 आपने देखा भी होगा, है ना? विवेक बजाज सर 55 यूज़ करते हैं अपने रिलेटिविटी के मॉडल में. अब करते नहीं करते मुझे नहीं पता, बट पीपल यूज़, है ना? कुछ लोग 21 यूज़ करते हैं. सो बाय डिफॉल्ट इट इज़ 55, है ना, जब आप इस इंडिकेटर को ऐड करेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो रोलिंग. SRS इज ऑलवेज रोलिंग, है ना? रोलिंग मतलब एज ऑन डेट अगर मैं ये पॉइंट देखता हूँ ना, लास्ट वाला, तो ये मुझे ये 123 डेज आज से लेके पिछले 123 डेज का परफॉर्मेंस बताता है, राइट? और अगर मैं एक दिन पीछे चला जाता हूँ तो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट रिमेन्स 123. तो मुझे एक दिन पीछे जाना पड़ेगा जहाँ से मेरा स्टार्ट होगा. तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि वो कौन सी डेट थी जहां से 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हुआ था रिसेंटली रोटो पंप का, वो कौन सी डेट थी? तो वो ये डेट है. यू सी दैट फ्रॉम हियर 27 दिसंबर से 26 दिसंबर से इसके अंदर 6 मंथ्स का रोलिंग में कमजोरी आना शुरू हुआ था और अभी तक इसमें कमजोरी है, राइट? तो आप किसी भी पॉइंट पे जब यहाँ देख रहे हैं ना SRS को, तो वो एक्चुअली 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं. आज भी देख रहे हैं तो भी, और अगर 1 महीने पहले देख रहे हैं तो भी पिछले 6 मंथ्स वहां से रिलेटिवली देख रहे हैं. तो आपको ये बताता है कि जैसे अगर मैं ऐसा करूं तो इस पॉइंट से लेके 10th जून 24 से लेके और इस पॉइंट तक अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ था, so each and every day if you add those 6 months का performance, it was performing much better than Nifty. but अभी वो डाउन हो गया. सो अगर आपको कोई बंदा है ना, और हम जानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल है, और वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? जिसका ARS पॉजिटिव होगा. और जैसे रोटो पंप इज ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक बिकॉज इसका ARS पॉजिटिव अभी भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही रहा है. बस यहाँ एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखता है, ये छोटा सा यहाँ दिखता है, बट अदरवाइज इट हैज आउट परफॉर्म निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम इवन नाउ. तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है. रोटो पंप को जाके आप स्टडी करेंगे, आपको लगता नहीं यार अच्छा है, इसके अंदर मुझे पोटेंशियल दिख रहा है.
बट इज इट द राइट टाइम टू एंटर? नो। तो वो पॉइंट क्या हो सकते हैं जहां आप इसमें एंट्री करने का ट्राई कर सकते हैं? यू कैन यू कुड हैव एंटर्ड हियर, है ना, जहां पे एसआरएस ने ये किया था, क्रॉसओवर किया था। इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क, बट एटलीस्ट उस पॉइंट पे आपको ये पता है कि पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस एज ऑन एज ऑन 5 दिसंबर आपके स्टॉक की बेटर है निफ्टी से। तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी ये थोड़ा सा वापस आ रहा है। सो यू कुड हैव एंटर्ड हियर, है ना, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ यू हैव एंटर्ड हियर? यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, यू आर नॉट इन लॉस। तो रिलेटिविटी मॉडल में एंड देन अगर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को अभी इसमें रहना है, कि बिकॉज आई एंटर्ड बेस्ड ऑन this point, right? And this is still positive. So should I stay in the investment? Yes, I would. है ना? अगर क्योंकि वो आपने बैकग्राउंड में ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि रोटोपम्प हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही इसमें ये सब हो रहा है, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, सो यू विल स्टे, यू विल नॉट एग्जिट। एट द अदर एंड अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे को ना थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम देखना है, सो लेट्स गो फॉर 10। तो अभी देखिए रोटो पंप ने ना पिछले 10 दिन में भी परफॉर्म नहीं किया है। लास्ट 10 डेज का परफॉर्मेंस भी रोटो पंप का इज नेगेटिव। इज इट द राइट टाइम टू एंटर और एड मोर? नो, इट इज नॉट कमिंग आउट स्ट्रांगली एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा है बट अभी नहीं। मेरे पास जो है आई एम होल्डिंग इट। डू आई ऐड मोर? नो, अभी आपको नहीं ऐड करना है, ठीक है। सो अब and it's up to you. By default it's 55, which is a good length to see. You can check for 21 क्या पिछले 21 days में भी नेगेटिव है। It changes, right? हाँ, if I look into 34 days का performance, so 34 days के performance में this guy has done good, and यहाँ से इसका बाउंस भी हुआ था। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप देख सकते हैं कि रोलिंग परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यू हैव ARS, you have SRS which is rolling, you have momentum length which is again rolling। ये सारे रोलिंग हैं। एंड देन यू ऑल्सो सी डेली परफॉर्मेंस, ठीक है। एज ऑन डेट यानी लास्ट फ्राइडे रोटो शोज 1.01% का अप साइड एंड निफ्टी शोज -0.47% का डाउन साइड। ऑन द अदर हैंड आपको यहाँ पर जो है कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स दिखते हैं, है ना। वैल्यूएशन बोलिए या थोड़े से फंडामेंटल फाइनेंशियल्स बोलिए, financials basically. So you see this EPS, year on year EPS, which is negative. EPS year on year is negative. EPS trailing 12 months is also negative, much more negative. यानी it is like year to year चलना है, और एक होता है कि 12 months यानी आज से 12 महीने। तो मैं आज अगर देखता हूँ तो आज जनवरी है, तो मैं फिर पिछले दिसंबर से जनवरी का कंपैरिजन कर रहा हूँ, है ना। और अगर मैं ईयरली देखता हूँ तो मैं फाइनेंशियल ईयर से कर रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। एनी आइडिया वाई TTM हैज़ अ इम्पोर्टेंस? 12 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इम्पोर्टेंस क्या लगता है आपको? वाई इट इज़ रिक्वायर्ड? ईयर ऑन ईयर है तो मेरे पास। क्योंकि Any सर idea? आफ्टर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं तो ये हमें जो करंट सिनेरियो है जो एट Yeah, करंट correct. पॉइंट ऑफ टाइम है वो चीज हमें दिखाता है कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो हम काइंड ऑफ हमारे लिए टेंटेटिव ही है, बट हाँ, फिर भी हमें आइडिया मिल जाता है कि इट इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट। करेक्ट। सो बेसिकली यू राइट योगी भाई, थैंक यू वेरी मच। सो मेरे आई एम ब्लाइंड, है ना, आई एम ब्लाइंड बिटवीन क्वार्टर्स।
मेरे को नहीं पता ना, अभी क्वार्टर रिजल्ट जब तक नहीं आएगा मेरे को नहीं पता वो 3 महीने में परफॉर्मेंस क्या चल रहा है कंपनी का, राइट। लेकिन अगर मैं 12 ट्रेलिंग मंथ्स की बात करूंगा तो मुझे महीने के महीने पता लगता रहेगा कि पिछला टीटीएम जो था और इस बार का जो टीटीएम है उसमें आज का मंथ इंक्लूड हो गया, है ना। तो मेरे को बताया कि बिटवीन दोज क्वार्टर्स एम आई इम्प्रूविंग, राइट। आई आई नीड नॉट टू वेट फॉर फाइनल क्वार्टर रिजल्ट्स और फाइनल रिजल्ट्स, है ना। कई कई बार तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी होते हैं जो ईयरली होते हैं, पूरे साल कंपनी क्या कर रही है, इंटरनली क्या चल रहा है, कुछ अच्छा पैदा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा, टीटीएम से पता लगेगा। सो that's the reason I have given it here. If you see on the headers, what I have done is I have put some uh, uh, tool tips, right? So if you don't know what is EPS, right? So मैंने इसमें inbuilt कर दिया है so that you can refer. The EPS is yearly measurement of company's profitability that indicates how much profit each outstanding share of common stock has earned. ठीक है, अर्निंग पर शेयर। सिंपल टर्म्स में बोले तो आपने एक शेयर 100 रुपये का खरीदा था, ठीक है, और 1 साल हो चुका है उसको लिए हुए, और आज उसकी वैल्यू 110 रुपये है, तो आपने एक शेयर पे कितना कमाया, 10 रुपये। राइट। सो योर ईपीएस वुड बी 10 रुपीज एंड योर ईपीएस परसेंटेज वुड बी 10%। सिंपल, है ना। ईपीएस में ईपीएस कैलकुलेट होता है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स पे, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। देयर इज वन मोर पैरामीटर जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से होता है ना, कि उनकी वर्थ क्या है, उसके ऊपर कितना उन्होंने कमाया, वो एक अलग पैरामीटर है, वो इसमें नहीं। तो ईपीएस इज वेरी कॉमनली यूज टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है करेंटली, दैट ईपीएस टेल्स। तो आपने कमाया नहीं, आपने गंवाया बेसिकली। अगर नेगेटिव ईपीएस है तो आप क्या करें, 100 रुपये का लिया था आपने और 90 रुपये का हो गया, वैल्यू कम हो, मैं आपने कमाया नहीं, फिर आपको देना पड़ गया। सो इन सिंपलर टर्म्स ऐसा समझिए कि आपने 100 शेयर खरीदे थे, 100 100 रुपए के, है ना। तो 100 रुपीज 100 शेयर्स, या 10 शेयर्स लेते हैं, 100 रुपीज 10 शेयर्स, तो आपके पास 1000 रुपीज थे, है ना। यू इन्वेस्टेड 1000 रुपीज, बट नाउ व्हेन योर ईपीएस इज 10%, देन यू हैव अर्नड 10 रुपीज पर शेयर। 100 थे तो फिर आपको 1000, नहीं उल्टा बोल गया मैं, 1000 था, एक मिनट रुकिए, लेट मी शो इट हियर। तो 100 था, 10 रुपीज का शेयर था, 1000 करते हैं इसका ना, 1000 का था सपोज, ओके वन मोमेंट। थाउजेंड के 10 शेयर्स थे, एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी, ऐसे ले लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एंड दिस इज योर शेयर प्राइस। और ये शेयर प्राइस, शेयर आपके सेम ही रहे, बट शेयर प्राइस आपका 110 हो गया। सो आपका ईपीएस क्या हो गया, 10%, बिकॉज यू हैव अर्नड 10% ऑन दिस पर शेयर। तो आपकी वैल्यू अभी हो गई, जहाँ 1000 रुपये थे आपने कमा लिए 1100। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ईपीएस को समझ के कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इतना समझिएगा कि आपने पर शेयर कितनी अर्निंग कर ली, आपने कितनी कर ली, दैट्स योर अर्निंग। ओके, आगे चलते हैं। सो दोनों दिए हुए मैंने, टीटीएम भी दिया हुआ है, राइट, एंड ये भी दिया हुआ है। देन सेल्स अंडरस्टूड है, ईयरली सेल्स ग्रोथ क्या रही, है ना, 3.8%। इज इट गुड एनफ, नो, बट ट्रेलिंग 12 मंथ सेल अगर देखते हैं तो इट हैज़ शोन सम इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली ईयरली सेल्स में पीछे से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट
ईपीएस में नहीं दिख रहा है. सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नथिंग वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव. OPM is operating profit margin. If you go over here, इसके ऊपर ले जाते हैं अपना कर्सर, तो आपको डेफिनेशंस नज़र आ जाएंगी. इनको मैं इम्प्रूव करूंगा और, है ना. आई मे ऐड सम मोर पैरामीटर्स. एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू में क्या है ना, अभी डेटा है नहीं इंडियन इक्विटी शेयर्स के लिए, डेटा ज़्यादा देते नहीं है ना. बाकी के लिए सब कुछ है, इसमें नहीं है. तो यह है तो गलत भी है ना. इट इज़ नॉट मैचिंग विद स्क्रीनर एंड ऑल, सो आई हैव मैच्ड देम. जो चीज़ें मैच कर रही हैं वही मैं यहाँ रख रहा हूँ, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. अदरवाइज आप स्क्रीनर में देखें कुछ और दिखेगा, यहाँ कुछ और दिखेगा. So sales is matching, EPS is matching, OPM is not matching, but at least you have an idea कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? इट्स फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट शोज परसेंटेज ऑफ कंपनीज रेवेन्यू दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. तो आपके पास जो बचा, आपका जितना ऑपरेशन था, जो भी खर्चे वर्चे थे सब हटा के, आपके पास जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज बचा. मोबाइल बंद करो. अच्छा. ओके. सो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. आप म्यूट पे हो जाइए प्लीज इफ यू नॉट स्पीकिंग. So now this is also an important criteria. So it is the more is better, है ना. So operating efficiency के बारे में आपको बताता है कि how you're operating the business. ROE is return on equity. Again, return on equity and return on capital invested, है ना. वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ROE is more very close and ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है. सो ROE को मैंने यहाँ पे रखा है. ये बताता है इक्विटी मतलब शेयर्स, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके ऊपर कितना रिटर्न इसने दिया है ईयरली बेसिस पे. सो दिस इज प्रॉफिट मेड फॉर शेयर होल्डर्स, ओनली फॉर शेयर होल्डर्स. ये कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है, हम लोगों का जो इन्वेस्टेड है. ठीक है. PE आई हैव नॉट गिवन एनी डेफिनेशन राइट नाउ, बट PE इज, या पल्लवी जी. तो EPS और ROE में क्या फर्क है फिर? इट शुड मैच, आई गेस. नो, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा, बट EPS इज पर शेयर आपने कितना कमाया, है ना, पर शेयर. इसका फॉर्मूला अलग है, ROE का अलग So है. EPS will be what the market value is, what the market is giving back, No, or is what EPS the is again, company. EPS is also on the outstanding shares. So if you Okay. look at the formula of EPS, it is earning net income divided by outstanding shares, weighted average उनका रहता है. तो हम उसको भी देख लेंगे, है ना. वी कैन कवर दीज डिफरेंटली, जैसे आपने, यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, राइट. सो लुक इनटू दीज पैरामीटर्स, बट दे आर देयर, राइट. वैल्यूएशन के लिए मैंने बस PE डाला हुआ है फिलहाल, है ना. सो EPS और PE का डिफरेंस आप पूछ रहे हैं ना, पल्लवी जी. No, sir, EPS and ROE, because if it's return on equity, then it should be the same. I mean, there must be It some. should not be. Let me see one moment. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं. Context is different. Basically, they are saying EPS measures a company's profitability per share, and ROE measures how much profit company generates from its shareholders' investment. I'll come back with more clarity.
Pallaviji, if that helps. Yes, sir. Thank Okay. you. Thanks for asking. Okay, so because अगर ये सेम होता ना पल्लवी जी तो वैल्यूज सिमिलर होती हैं एटलीस्ट इफ नॉट सेम And there won't be two different ratios. So या करेक्ट what is the difference? correct. D2E is the debt to equity ratio, which is like how much debt company owns. Debt is not a bad thing. कंपनी लेती है कर्जा, बट क्या जैसे मान लीजिए मुझे घर खरीदना है तो आई टेक लोन फ्रॉम द बैंक, बट देन उस लोन को चुकाने की क्षमता मेरी कितनी है, मतलब can I pay it out easily, pay back easily, or it would be difficult for me? ये do you remember which parameter will tell this? This is not D2, it will not tell it. There's one ratio that tells that I can easily pay it back. इसको बोलते हैं, इसी नाम भूल जाता हूँ मैं. I made it here. Call it इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं इसको. सो इट टेल्स यू कि ठीक है मैंने लोन लिया है, बट मैं इसको बहुत आराम से पे बैक कर सकता हूँ. सो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 आई शुड बी गुड. So that is not something you should worry about. Debt to equity आपको उतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता, बट इफ इट इज लेस देन 1 you should be good. नेक्स्ट अर्निंग डेट मैंने यहाँ दे दी है, हालांकि यहाँ पर ये 1/1/1970 बता रहा है, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज डेटा इज़ नॉट देयर. आप अगर यहाँ देखें ऊपर, फ्यूचर अर्निंग इज नॉट शोन हियर इन केस ऑफ रोटोपम. सो लेट्स गो टू CG पावर. और CG पावर में ये नेक्स्ट अर्निंग डेट शो हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखें, एंड दैट्स व्हाई इट शोज 12th of Feb 2025 को इसका रिजल्ट आने वाला है. मे बी आई पुट इट फॉर ऑल द पोर्टफोलियो स्टॉक्स कि उनकी अर्निंग डेट्स क्या हैं इन नेक्स्ट वर्जन, बट दिस इज फॉर द सेलेक्टेड वन, राइट. Sector industry, again, this is as they have defined. I mean, TradingView has defined it. It may or may not match. Mostly it will not match with how Screener has defined or other software has defined them. It is charting का definition अलग है, sector का TradingView का अलग है, Screener का अलग है, सबका अलग अलग है. तो उसको मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा, you'll be disappointed. Right. This is just for the information. यहाँ पर है कि कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है आपका स्टॉक. ओके, नाउ देयर इज मोर टू इट. I started with this with the idea of portfolio management, and that's why the name is Portmeter. So let's go to portfolio. So show what? Show portfolio. Rest you don't need actually. This is a single point of view, and you don't need anything really when you're doing this. So, okay. Now, Sir, just 2 points. Sorry, sir. Mhm. If market cap could also be added. I would, yeah, that I can add. Market cap and type, large cap, small cap, that would help. I can think do that doesn't matter because we don't really look at the type as such. I mean, at least I don't. But Okay. and the other thing is, I think the free float also. I'm just learning about it, but that also matters, right? Because Yes, it does. it has to be compared to the volume which is being traded. Yes. So free float and market cap, I'll add. No worries. Thank you, sir. Sure. Now, what you need to do is here. So you see these tickers. Tickers, there are only 12. There has to be some limit, and having not more than 12 stocks in your portfolio is advised, and that's the reason I have limited it to 12 only. In case you want to track more, you have to add it as a new layout or new template, right? And save it. But otherwise, so suppose
initially, when I'll share it with you all, then this value would be nifty. Let's do that. Hmm. So it would be something like this for all. Let's copy it. Initially. It's testing, so I wanted it to be pre-populated. That's the reason, but when you get it, it would be nifty for all. So as you can see, it is not drawing anything for nifty because comparatively nifty is nifty. So you may have 12 max, but you can also have 6 or 7 or whatever number. So now, if we go to portfolio, I say ARS. Now I'm selecting only ARS here. So what you see, there is another variable, right? Display ARS or SRS or all. All is in case of one stock only, so because otherwise it will be too confusing. So ARS. Now I am showing ARS for my portfolio. Right now you see only one, and that one is nothing but whatever you have selected right now. The CG power as compared to Nifty, you can see a comparison from 20th July 2023. Nifty returned 16.14%. CG power has returned 57.45%, and this is daily performance. I changed my selection, it becomes BHEL. It shows me ARS chart for, so again, this is outperformer. It shows on the top above Nifty based on ARS. Now I want to add more. Before I add more, what happens if I change it to SRS? If I change it to SRS, it shows SRS chart, right? So not performing right now, which you can also see irrespective of. So this performance for 6 months is down by 30%, whereas Nifty is only 5%. So right now it is not working fine. So not of my interest as of now, BHEL. This technique, this methodology will clearly tell you what is the right time to enter. It will exclude all weak cases, even if you're interested. So we know if there is no relative strength, we are not interested. So we'll not look at it. So I'll go to setting again. Give me any name, any stock. NBCC. NBCC, okay. So I've added only NBCC, for example. Now you see, this is SRS chart. Now SRS chart is showing for two symbols, two stocks. Right? One is for NBCC, another for BHEL. It is showing BHEL because BHEL is currently selected, NBCC because it is one of your portfolio stock. So it is showing BHEL and NBCC both. How does this help you to make a decision? This is very good because it also shows you additionally whatever you have currently selected so that you can compare. So if I look at both charts, NBCC and BHEL, I can compare them, their performance, their relative performance. Everything is relative. And if I look at NBCC and BHEL relative performance, it is very, very similar, kind of, if I ignore this point. But otherwise, it is similar, right? Since so this is SRS, and you can, let's just start with ARS. So when you look at SRS, let me go back here. If SRS is showing this way, it is going downtrend. What does that show is it is decreasing. That performance is decreasing the distance between Nifty and this is
going down, 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 down. It is going into weakness mode. And here it was completely weak. Would you hold it? No. You may wait for some time to take your decision, 1 week, 2 week. But if it was showing in September, you were still holding it, then you're not following the system. Okay, you could have partially booked it. Even if you're in loss, even if you're in profit, doesn't matter, because if you know the path ahead is showing a further weakness, irrespective whether you will be in profit or loss, you should exit. And that's the action that we should take. So Sir, this blue line is showing for BHEL, right? yeah, this blue line is for BHEL. You can see the color, this matches, right? So this Okay, and the matches black here. line is Yeah, black line is black line is for currently selected as stock. It is always black. This is to okay. distinguish, right? So when I add more, you'll see different colors, right? There will be two colors which will be constant. These two colors. You'll see the one which is selected as black, the one the one which is selected as this blue color, currently selected. ये क्या बोल रहा हूँ, हाँ currently ऐड कर लेते रुको यार, add me one more here. एक और बताएं प्लीज. संधार. संधार परेशान कर रहा है ये अभी. बहुत परेशान कर रहा है. आएगा पेशेंस चेक कर रहा है. ओके, सो हाँ अब ठीक हो गया. So you see this, these two colors, right? BHEL का जो color आ रहा है, which is your currently selected one, it remains the same. ठीक है. ये जो black आ रहा है, this is for which one यार? BHEL Sandhar. SRS chart is this black. अरे यार कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा. एक और ऐड कर लेते हैं कोई. Let me add Kalyan Jewelers. ब्लैक कौन सा, ये समझ नहीं आ रहा है ना. शक्ति पंप वुड बी दिस वन. नहीं, शक्ति पंप ये नहीं हो सकता. एक मिनट रुके, SRS चार्ट ARS से पता लगेगा. शक्ति पंप का परफॉर्मेंस तो जबरदस्त रहा. शक्ति पंप ही है ये. शक्ति पंप है. कोड देखना पड़ेगा मुझे. वेल अगर मैं बाकी हटा देता हूँ, दिस आई विल कम बैक है. इसमें अभी देखें तो देखिए, लेट्स लुक एट द टेबल है. अभी टेबल पे देखते हैं, राइट. टेबल्स में अगर देखें, सो दिस इज सॉर्टेड बेस्ड ऑन ARS performance, and now this is in terms of percentage, relative percentage profit, not the percentage profit, relative percentage profit. मतलब कि 20 जुलाई से लेके अब तक इस बंदे ने मुझे रिलेटिवली 246% रिटर्न किया है. NBCC ने, कल्याण ने 193, सांधार ने 34. बट पिछले 6 महीने में this guy has gone down like 18%, whereas Nifty has gone down 5%. ठीक है. SRS पिछले 34 डेज की या
और you take it as 21 days की या 55 days की परफॉर्मेंस अगर देखते हैं, रोलिंग परफॉर्मेंस यानी स्टार्ट पॉइंट इज 55 days in the past till today. तो उस हिसाब से NBCC has outperformed. Kalyan Jewellers has not done anything. However, Kalyan Jewellers has returned 200% kind of very good return. So overvalued होगा अभी फिलहाल, and then यहाँ भी इसने कम दिया है. So इनको जाके देखना पड़ेगा कि ये ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपका कि ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं. एनबीसीसी इज अ गुड वन, कल्याण जी इज ऑल्सो वेरी गुड वन, संदार इज ऑल्सो गुड वन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया है इसने, है ना. इट मे नॉट हैव शोन a good growth here, but in long term it has shown growth. And if you find this company has a potential, you should be good. फर्स्ट ट्रांच है तो इसी तरह से फिर हम इसमें बाकी ऐड कर देते हैं. ये और ऐड करते हैं और हम अभी डिसीजन पॉइंट देखेंगे कि HAL फॉर एग्जाम्पल, है ना. एंड देन एक एग्जाम्पल में ऐसा भी ले लेता हूँ लाइक एशियन पेंट. बट somebody is still holding Asian Paint is not doing the right thing. आपका 50% नुकसान हो सकता है, आपका 50% लॉस हो सकता है मान लीजिए, एंड यू आर नॉट कमिंग आउट, यू आर नॉट डूइंग इट राइट, इट हैज नो स्ट्रेंथ. Can you add Suzlon? सुजलॉन कर लेते हैं. एंड व्हाट एल्स, PEL, इसमें नजर होगी कुछ लोगों की. व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री. Coforge, दिस इज वन टाइम एक्टिविटी. डिक्सन ले लेते हैं. तो वन टाइम एक्टिविटी, देन यू सेव इट एज अ टेम्पलेट. ठीक है, टेम्पलेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको और कुछ डेटा चाहिए ही नहीं. इट इज सिंगल विंडो एंड इट गिव्स यू जबरदस्त व्यू. M&M, all 12 added. Okay, now you can see Asian Paint. Holding Asian Paint is a good idea. Not at all. This guy has underperformed from ARS date, underperformed in last 6 months, underperformed in last 55 days. ठीक है ना. तो ये डिसीजन पॉइंट्स आपके बहुत आराम से निकल के आ जाते हैं. सो यू रियली नो कि should I hold it or exit? Huh? Do I break this relationship, the toxic relationship that I'm having with this girl? Should I, or boy, should I come out of it? So it will clearly show you कि अब कोई फायदा नहीं है ना. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू. मोमेंटम वेटेज क्या है? ARS का वेटेज सबसे हाई है, SRS का नेक्स्ट है, एंड मोमेंटम का इट्स अप टू यू. You want to consider it, don't want to consider it, but इट्स अप टू यू, है ना. कुछ लोग जो मोमेंटम देखना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ ऐसा देखिए कि एक स्टॉक था जो बहुत स्ट्रांग है, एंड देन पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस अगर मैं देखता हूँ तो दैट कंबाइंड परफॉर्मेंस इज शोइंग अप कि पिछले 15-20 दिन की जो परफॉर्मेंस, 15-20 दिन से रोलिंग वे में इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी. एंड देन 21 days या 55 days में भी इट इज जस्ट स्टार्टेड शोइंग अ पॉजिटिव मूवमेंट, है ना. कि अब ये यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में भी रिलेटिव परफॉर्मेंस, अगेन वी आर नॉट लुकिंग थिंग्स इन इंडिपेंडेंट वे, वी आर लुकिंग रिलेटिवली, है ना. वो हो सकता है नेगेटिव हो, बट इट इज बेटर देन हाउ निफ्टी इज डूइंग. सो अब कौन से पॉइंट देखें? ये तो सारे ऊपर ही आ गए यार, कुछ नीचे भी जाने चाहिए तेरे को. लेट मी ऐड
एशियन पेंट जैसा कोई है क्या? बोरोर नहीं हो। Still renewables. Here this guy is also अंडर परफॉर्मर, है ना? ये आपको यहाँ दिखता है, ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये रेड वाले, दे आर एक्चुअली दीज टू। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको यहाँ पर देखिए नाम नहीं आ रहे हैं, यहाँ नाम दिखाना पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, बट वो भी नहीं आ रहा है ना? वो भी उसको उसको शो करना बहुत कम्बरसम हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू लुक एट हेयर, है ना, यू हैव टू लुक एट हेयर। अब आपको क्या है ना, जो आपने करेंटली सेलेक्ट किया हुआ है, अब मान लीजिए आपको बोरोर न्यूज से एग्जिट करना है या एशियन पेंट से एग्जिट करना है, ठीक है, और ये आपने ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं सारे, एंड देयर इज वन विच इज शोइंग अप, सो यू आर फाइंडिंग अ चॉइस, अ स्ट्रॉन्ग वन, जिसमें आपको एंट्री लेना, मतलब यू आर लिविंग फ्रॉम अ वीक स्टॉक एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि वो कौन सा स्टॉक है जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ बिकॉज रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने, तो ये टेबल आपको उसमें बहुत हेल्प करती है। बिकॉज सी, कैन आई, if I don't have Shakti Pump, if I don't have Shakti Pump in my portfolio, can I exit from Asian Paint and buy Shakti Pump? आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? जी सर, शक्ति पंप, है ना? राइट। रहेगा ना, बिकॉज शक्ति पंप का परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ एआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआरएस पॉइंट ऑफ व्यू से, मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इफ इट इज 5% डाउन, आई शुड नॉट केयर। इन्वेस्टमेंट है ना, मेरे को इससे मतलब नहीं आज ही नीचे गया कि ऊपर गया, ये यहाँ अगले दिन भी 5% नीचे चला जाएगा, आई एम स्टिल गुड। तो इट हेल्प्स यू टू टेक दैट पोर्टफोलियो का जो रिवीजन, एंड देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको ये हेल्प करेगा व्हेन यू वांट टू partially book something and enter into new trade, or you want to rotate your money. So क्या होता है कि ये कंपैरेटिवली आपको यहाँ दिखता रहता है एज एन व्हेन यू, कैन आई गो टू अपारेंट्स, डेफिनेटली, राइट? तो आप यहाँ देख सकते, कैन आई गो टू रियलटेल? रियलटेल, can I go there? Uh, Now you have to look at SRS here, right? You're showing ARS chart, so let me show uh, SRS. Or what I can do is I can show all for the selected one, not to confuse you. So it only shows for द सेलेक्टेड। अब ये रेल टेल का चार्ट दिखा रहा है मेरे को सिर्फ, है ना? यहाँ पे चार्ट में टेबल में यू सी ऑल द फिगर्स, ऑल द नंबर्स, बट हियर यू सी ओनली फॉर रेल टेल, राइट? नीचे आ भी रहा है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी देखिए रेल टेल एआरएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त है। हमें पता है कि आउट परफॉर्म किया था इसने, अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, एंड इट वाज काइंड ऑफ 186% फ्रॉम दिस डेट, 186% का रिलेटिव रिटर्न दिया था। और बट पिछले 6 महीने में, 6 मंथ्स फ्रॉम ईयर, ऐसे पीछे अगर 6 महीने जाए 123 डेज के लिए, तो फिर इसमें आई सी अ डिक्लाइन ऑफ 15%, रिलेटिव डिक्लाइन, अगेन रिलेटिव, नॉट, है ना? हो सकता है इससे ज़्यादा ज़्यादा ही होगा, बताओ क्यों? क्योंकि 6% इसका भी है, सॉरी निफ्टी का कितना है? निफ्टी का 5% है, तो 5.2% निफ्टी नीचे गया, लेकिन रियल टेल 15.6% नीचे चला, तो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो शोन हियर व्हेन यू लुक एट एसआरएस। शुड आई ऐड मोर? नो। आपको रियल टेल में अभी जैसे मन कर रहा है कि यार ये तो काफ़ी नीचे आ गया, अब तो ये ऊपर जाएगा, ऐड कर लूँ क्या? नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ऐड इट, ठीक है? हाउ एवर यू सी कि पिछले 55 दिनों का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, तो यहाँ ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड इट
this color changes, right? If it goes down, it becomes red, and if it comes up, it becomes green. So green और red जो आपको दिख रहा है, वो basically ये momentum का है, ठीक है? This momentum, this shows RM 55%. तो अगर आप कुछ इसको चेंज कर देते हैं, तो 55 days की जगह वही आपको यहाँ नंबर चेंज होके मिलेगा. So if I want to look at 21, तो ये डायनेमिकली चेंज हो जाता है. दिस इज RM 21% नाउ. So now you see 21 days का परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी क्लोज टू निफ्टी. लेकिन अभी अभी आया नहीं है, गिरा बहुत हुआ है, लेकिन अभी इसने स्टैब्लिश नहीं किया. जैसे यहाँ थोड़ा सा किया था, लेकिन अभी उतना नहीं आया है कि मैं इसके अंदर एक कन्विक्शन बना पाऊँ कि हाँ ये अभी टर्न अप हो रहा है ना. तो ओवर वैल्यूड भी है, तो इस वजह से इट इज़ बेटर टू वेट फॉर नाउ. लेट इट शो पॉजिटिविटी फॉर ऑल. ठीक है, SRS में भी, RM 55 में भी, आई वुड से, क्योंकि दैट वुड बी अ वेरी गुड कंफर्मेशन कि 55 डेज का पिछले 15 दिनों से जो परफॉर्मेंस है वो निफ्टी से बेटर है. तो दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड आइडिया. 55 का भी मेरे ख्याल से इट वुड नॉट शो पॉजिटिव, राइट? इट इज़ नॉट पॉजिटिव. इट इज़ शोइंग पॉजिटिव एक्चुअली, बट SRS का नहीं दिखा है. आई विल वेट टू एंटर इनटू रेलटेल. Okay, so this gives you, this helps you to take decisions of exiting and entering into Dixon. Now Dixon, जबरदस्त. तो आई थिंक कुशल भाई से बात हो रही थी. कुशल भाई को शायद कन्विक्शन नहीं था डिक्सन को लेके. बट नाउ इफ यू लुक द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ डिक्सन हियर ऑन द चार्ट, व्हाट इज योर कन्विक्शन लेवल? जबरदस्त है ना, है ना? बहुत क्लैरिटी आ रही है कि नहीं यार, दिस इज गुड. एम्बर, निकिता जी का फेवरेट. ओ, फ्रॉम ARS, वेरी गुड. SRS, वेरी गुड. 55 डेज से थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, बट दैट डजंट मेक दिस स्टॉक अ नेगेटिव वन. So you can still consider it. It is still positive. ये मतलब रिलेटिवली थोड़ा सा कम हुआ है, बट इट इज स्टिल अबव निफ्टी. निफ्टी को आउट परफॉर्म ये अभी भी कर रहा है फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? और ये देखिए पूरा आपको यहाँ पर पता लग जाता है. जो बॉटम में है ना, वो आपके वीक स्टॉक्स हैं बेसिकली फ्रॉम ARS परस्पेक्टिव, और जो टॉप पर हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं. सो यू कैन रोटेट योर फंड फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग वन, पार्शियली और फुली. नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग. कैन वी कंटिन्यू और ज़्यादा हो रहा है? नहीं सर, ठीक है. Okay. Now I was telling one more thing. The reason why I have put this as 10 and not 13, because 13 is a Fibonacci number, but I have put 10. So when I put it as a 10 here, अभी हम लोगों को क्या दिखता रहेगा कि अगर आप सिर्फ इसको देखें ग्रीन और रेड को, एंड लेट मी ऐड एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं फिर, रिमेंबर, विच इज अल्फा रिटर्न. और अल्फा रिटर्न में देयर इज समथिंग कॉल्ड टेन डेज रोलिंग अल्फा, राइट? 10 days rolling alpha. Now this 10 days rolling alpha is nothing but the representation of this thing here. If you see here, and this is demand, right? This we look as a demand. देखिए इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, but you see goes up, down here, up, up, थोड़ा सा रेड में गया, फिर ऊपर आया, फिर ये गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ. एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस इज वेरी क्लीन. तो आप यूज कर, मतलब you may want to add it for more clarity, but this is same as demand. So if you change your uh, momentum length to 10, which is 10 days rolling alpha, actually it is showing same thing है. तो आपको क्या देखना है, रेड ज़्यादा है या ग्रीन ज़्यादा है? तो without going to this chart, alpha return chart, you can also see it here.
इसको यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा सा कम्बर्सम हो रहा था बिकॉज रेफरेंस चेंज हो जा रहे हैं टेक्निकली, है ना. इट इज़ बेटर टू पुट इट हेयर, बट यू हैव दिस इंफॉर्मेशन हेयर फॉर श्योर, है ना. तो आपको यहाँ से, अगर आपके पास ये चार्ट ना हो, इफ आई हाइड दिस एंड यू वांट टू लुक एट डिमांड, कि मेरा स्टॉक डिमांड में रहता है क्या, तो यस, इट गिव्स एन आइडिया, राइट. इट इज मोर इन डिमांड. लेट मी सी दिस वन. इट्स मोर इन डिमांड देन सप्लाई, है ना. इज इट गुड नाउ? नो, अभी नहीं. सो हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे, इफ यू डोंट हैव दिस एडेड, राइट, वी लुक फॉर डिमांड शोइंग अप अगेन. तो अभी डिमांड नहीं है ना, ये रेड है, ये भी रेड है. अब बात समझ रहे हैं. तो इफ इट शोज ग्रीन, दैट्स एन इंडिकेशन दैट डिमांड इज showing up again. So without having this, you can conclude it from here as well if your rolling bar or momentum length is 10, which is 10 days rolling performance. EPAC. EPAC is relatively new stock, so it is not showing up correctly because इसका starting is first Feb. So क्योंकि first Feb से start हुआ है, so I cannot show it there. तो इसको change कर लेते हैं, है ना. Let's make it first Feb, and then it starts showing up. So EPAC may show some supply right now, but if you see in totality, it is more in demand than supply. Good stock, very good performance. ARS is this color and SRS is black color. Okay. So if I'm interested in EPAC, I'll wait for the right moment and I can buy it. कोई issue नहीं है. If I'm holding it from this point here, I'm still okay. Okay. सर जैसे हम ईपैक की बात कर रहे हैं तो उसमें ARS जी. टिल दैट पॉइंट, राइट? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार फिर से बोलिए. हाँ जी सर, मैं जैसे ईपैक की बात कर रहे हैं, इसमें ARS एंड SRS आर लुकिंग गुड, यस, दे आर. राइट? तो अब हम अगर किसी ने एंट्री करनी हो तो हम जो ये RM10 है इसको वेट करेंगे जब तक वो हाँ, मतलब इसका ग्रीन विजिबल नहीं होने का होता, वेट कीजिए. हाँ, वेट फॉर वेट इट टू करेंगे, बी ग्रीन, है ना. इट विल शो द डिमांड. बेसिकली ओवरऑल राइट अगर राइट पूरी जर्नी अगर देख रहे हैं, तो इट हैज मोर डिमांड देन सप्लाई. ये तो क्लियर हो गया है ना, क्योंकि मोर ग्रीन्स देन रेड हियर, है ना. जी, और क्लैरिटी देखने के लिए आप यहाँ भी जा सकते हैं. दिस शोज इट मोर क्लियरली, है ना. राइट राइट बट रख लीजिए इसको, कोई दिक्कत. मैं तो बस बताना चाह रहा था कि द सेम थिंग इज डिपिक्टेड हियर बाय दिस ग्राफ, है ना. इफ यू मेक इट 10, सो दैट यू कैन डू. मैं देखूंगा इसको, मैं कुछ कर सकता हूँ तो, बट फॉर नाउ दिस इज द केस. तो वेट फॉर इट टू बिकम ग्रीन, है ना. so समवेयर समथिंग लाइक दिस, है ना. तो इस पॉइंट पे अगर मैंने लिया होता तो क्या हुआ होता, ये आप ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हियर, आई एम स्टिल इन, I'll say I'm still in profit in this market. I'm still in profit by 21%, है ना. Not relative, इसका सोल, है ना. तो ये ठीक है. सो इसमें अभी ये EPS T नहीं दिखा रहा है, 12 ट्रेलिंग मंथ्स का नहीं है. तो जो जो कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगे वो नॉट एप्लीकेबल हैं, सो इट विल नॉट शो इन देम, है ना. लॉरेंस सर लैब्स. इसमें हम जैसे अभी सिलेक्ट कर रहे हैं RM10 को, तो हम इसमें RS55 को भी मतलब बाय डिफॉल्ट ऐड कर सकते हैं कि वो भी शो हो अलॉन्ग विद RM10? नहीं, कोई एक ही हो, वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, अगर चार ग्राफ दिखाएंगे. वी वांट टू हैव ए क्लैरिटी. देख, 10 इज ओनली फॉर डिमांड, है ना. ओवरऑल डिमांड, जिसके लिए आप अल्फा वाला, अपना अल्फा रिटर्न वाला यूज़ कर राइट, लीजिए, ठीक है. जी एंड जी, देन एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू सी, इफ यू इंटरेस्ट इन मोमेंटम, तो आप 55 यहाँ पे सेलेक्ट, आपको दो व्यू दिख जाएंगे, है ना.
So Correct, it is correct. better to use both, one for 10 and one for this. So देखिए 55 में it should very good, है ना? I should still be okay 55. अगर देखिए मैं ऐसा तो है नहीं कि आज घुसूंगा कल निकलना है ना? जी जी This is Loris Labs. This is a different stock. तो मेरे लिए this is showing a lot of demand at this point in time. Lots of demand, right? So अगर मैं इसको 55 कर देता हूँ, it will show same thing. देखो exactly same thing is being depicted here, right? Lots of demand here, but जी राइट. we go by 10. तो इसको आप यहाँ रखिए. Still there is a lot of demand and momentum is also very very good. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके चलेगा, but Loris Labs seems a very good stock if you want to book loss or profit from Asian Paint or borrowed new and then you want to go to this. ये आपका तो इसमें आपकी मैट्रिक्स में जो टेबल है इसमें आपको तीनों व्यूज दिखते हैं ना. आपका एक नया स्टॉक आप लेना चाहते हैं, उसका कंपैरेटिव दिख जाता है. जो आपको ऑलरेडी होल्ड कर रखा है आपने, वो कहाँ स्टैंड करते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी, वो दिख जाता है. कहाँ से निकलना है, कौन से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ जाती हैं. राइट एंड देन कुछ ये पॉइंट्स मैंने यहाँ डाले हैं. कुछ और भी देखेंगे इफ दे मेक सेंस एंड दे आर एक्यूरेट. आई विल पुट मोर. I'll also add market cap and free float, and then we'll discuss how they impact investment decisions. उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे. ठीक है. और देखता हूँ कुछ रह गया नहीं. इंडस्ट्री पी ने है क्या नेटेड इधर इंडस्ट्री पी. वो मैंने सोचा था इसमें है ही नहीं, है ना. ओके. It's not there in TradingView. TradingView is not actually something like a stock screener, है ना. We are using it like that and designed this for that purpose, but इसमें है नहीं database ज़्यादा कुछ. Whatever is available. इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे. It is there Right. in charting, but not here. तो एक व्यू और है. So basically, you want to see your portfolio from SRS perspective, right? You want to see your portfolio, entire portfolio from SRS perspective here, along with a new selected stock Loris Labs. तो अगर आप यहाँ देखें, इसमें बहुत कुछ है. अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, you'll find it very very interesting. Loris Labs is this black line, this black one, so currently selected. So ये जो black है, ये आपको बता रहा है कि मैं this is your SRS chart. You see this SRS chart, right? So 6 months का परफॉर्मेंस इसका धीरे 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 बेटर ही हो रहा है, राइट. एंड यू आर स्टिल होल्डिंग फ्यू स्टॉक्स जिनका 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस उतना ग्रेट नहीं है, इंक्लूडिंग एनबीसीसी, सुज़लॉन, एचएएल. यू मे वांट टू रोटेट योर फंड partial from here to this guy, at least जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना. वहां से लेके आप इसको यहाँ पे ला सकते हैं. बाकी कुछ डिसीज आप बोलेंगे शानदार को क्यों नहीं लेके आ रहे. शानदार, you may have a different story, a background of some company where you have more conviction, then you'll not go by technical 100%, है ना, then you'll hold it. But right now what we are looking is purely technical and the performance, relative performance के बेस पे किसने कैसा किया, क्या डिमांड है, कैसे क्या है, उसके बेस पे हम लोग जा रहे हैं. So लेकिन Loris Labs clearly stand out हो रहा है कि it's a good one. I can buy it. Anybody disagrees? No, sir. है ना. Value Forge started on 16th May. 16th May. ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा. It will not show up. उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर डिक्लाइनिंग है. 13th, एक मिनट, 16th में 24 था, 23 था.
I don't know, for some reason, Azad. आजाद भाई क्या कर दिए? अच्छा, अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ इसका. But this is from SRS point of view. And if you want to see ARS point of view, and this is your ARS point of view. ठीक है? Azad is standing out like anything. And you can see relatively, again, this is not same as this, right? Relatively, this guy is again making a rounding bottom pattern, right? So you can decide. And it has been a very good performer as compared to Nifty. So somebody, जो top 5 हमने लिए हैं, I think you may have chosen Azad Injury. You made a good choice. ठीक है. हो सकता है मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ, but that's it. I think it will add a great value to what we do. And then इसको यूज़ कीजिएगा. बाकी वो फॉर्म भर देना आप लोग. And I would provide access based on that form only. तो जिन्होंने नहीं फिल किया है, please fill that. I need that information. And that's the project management way to get the things done. इसलिए मैंने बोला मैं एक्सेस उसी को दूंगा जो भरेगा. ठीक है. तो उसमें मेरे को रेस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा. That's it. Any question? सर इसमें टॉप 5 काइंडली ऐड कीजिएगा. विंडलेस, हाँ हाँ, कैंस टेक्नोलॉजी, अनंतराज. ये टॉप 5 ये फोकस 2025-01 वाला ही लिस्ट है बेसिकली, इफ यू सी दिस राइट. तो इसमें जी से आपके टॉप 5 क्या थे वो आपको बताना पड़ेगा. जैसे आप बताइए आपने क्या लिया हुआ है. आई कैन ऑल्सो लुक. हाँ जी, अजास्त है उसमें. कैंस टेक्नोलॉजी, विच वन? कौन सी? KAYNES, अच्छा, कैंस टेक्नोलॉजी. काइंस इज वेरी गुड चॉइस. वेरी गुड. अनंतराज. अब आप देखिए, क्लैरिटी मिल रही है ना, जबरदस्त क्लैरिटी मिल रही है कि मेरी चॉइस ठीक थी कि नहीं ठीक थी. शुड आई होल्ड इट? यस, वेरी मच. एक और एडिशन है जो मैं करने वाला हूँ, विच इज एक्चुअली थोड़ा जी सा कम्बरसम है. वो ये है कि इसके अंदर एक कस्टम इंडेक्स भी डालेंगे आपकी होल्डिंग्स की. ठीक है. लेकिन अगर मैं कस्टम इंडेक्स डालूंगा तो प्रॉब्लम मुझे ये आएगी कि कस्टम इंडेक्स सिर्फ 10 स्टॉक का बन सकता है. तो अगर अब जी मुझे उन 12 में से कौन से 10 लो, ये तो मैं अपने आप नहीं सोच सकता ना. राइट. तो फिर या तो मैं इसको लिमिट करूं 10 तक, नॉट मोर देन 10. इफ यू ऑल अग्री आई कैन डू दैट. देन आई कैन. फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कंबाइंड, राइट, कंबाइंड वे में कैसा जी परफॉर्म कर रहा है एज अगेंस्ट निफ्टी. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू. आपको याद होगा टॉप 5 आप सभी ने लिए और ये मेरे वाले हैं. ठीक है. सो अब ये मैंने एक लाइन खींची हुई है, इफ यू सी दिस राइट. सो व्हाई डिड आई बाय फ्यू स्टॉक्स एट दिस लेवल? बिकॉज टेक्निकली ये मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा रहा था ट्रेंड लाइन के हिसाब से. ठीक है. सो दिस इज कंबाइंड परफॉर्मेंस. दिस ब्लैक लाइन इज कंबाइंड कस्टम इंडेक्स राइट फॉर ऑल द स्टॉक्स दैट आई हैव चोजन. सो आप ऐसी भी कुछ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि यू ऐड एट इम्पॉर्टेंट लेवल्स, है ना. हालांकि जब लिया उसमें लेने के बाद कुछ ट्रांच मैंने पहला यहाँ लिया था, दूसरा मैंने यहाँ कहीं लिया था, बट it is reverted from here. Not sure if it will go, but still fine. So I'm holding. आप समझ. So as a basket I'm holding it. I'm not bothered कि मेरे को नुकसान आ जाए. हाँ, नुकसान है, अभी सभी को है, मुझे भी है, बट look at it as a long term thing, right? आपने यहाँ लिया होता और आप यहाँ होते, उसको नुकसान की तरह देखते, बट it showed a very good improvement relatively, है ना, overall. So if the stocks are good and they're forming a trend and you buy it important. Again relativity है ना. कहीं पर भी हम स्टॉक को स्टॉक की तरह नहीं देख रहे हैं, या तो कंबाइंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कंबाइंड परफॉर्मेंस को भी रिलेटिविटी पे देख रहे हैं. So that adds a lot of value. Agree?
कोचिन शिप को चेक करते हैं एक बार। Oh, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके। I'll see what more I can add here. This is very good. When I started this, मुझे नहीं लग रहा था मैं कर पाऊंगा कुछ ऐसा। कोचिन शिप इज स्टैंडिंग आउट, स्टैंडिंग आउट इन 55 डेज का परफॉर्मेंस अगर मैं देखता हूँ ना, ठीक है, कोचिन शिप का, सो वो 6.4% का रिटर्न मेरे को देके गया है, वेयर निफ्टी मेरे से 5% लेके गया है। तो पिछले 55 दिन से relatively कोचिन शिप इज परफॉर्मिंग गुड। सो अगर और दिस हैज परफॉर्म वेरी वेरी गुड फ्रॉम एआरएस डेटा। सो 6.72% निफ्टी लौटा है, तो ये मेरे को 119% लौटा है। इसका मतलब ये हुआ कि it has returned a very good profit, but at the same time it has become overvalued। ठीक है, अभी ओवर वैल्यू हुआ तो क्या करेगा, फिर करेक्शन करेगा। करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद आई एम सीइंग ऑन दिस। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर करते हैं इससे क्लैरिटी मिल रही है। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ हो रही हैं सारे स्टॉक्स के लिए, बट यू ओनली सी ब्लैक फॉर द सिलेक्टेड वन। ठीक है, ऑल्सो द कंपैरिजन। तो अभी मेरे को ये कन्विक्शन आता है क्या कि कोचिन शिप में फर्स्ट ट्रांच बाय कर लेते हैं। व्हाट इज योर आंसर? would you add कोचिन शिप एज a first tranche if you don't have it? Yes, sir. I would. I would be very very comfortable adding it. And if you're already Exactly. holding it, would you be would you fear and sell it? Definitely not. इस No. पॉइंट पे तो बेचने का कोई मतलब ही नहीं है। पिछले 55 दिन से जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। लेट मी सी SRS चार्ट, सॉरी, दिस इज ARS चार्ट। हाँ, नहीं है, इट इज डिक्लाइनिंग हियर। 55 में पॉजिटिव है, बट आई वुड बी ओके, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, it shows me a stable, a very very important support level here, right? And it has corrected to a very good extent, very good performer. Shipping आपको पता है ये seasonal है ना, and generally shipping starts performing after मई, है ना, अप्रैल और मई के आसपास इसमें आपको कुछ मूवमेंट्स दिखेंगे। तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये अभी ऊपर नीचे चल सकता है सिंस अक्टूबर, ये ऐसा ही चल रहा है ना। नीचे भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, देन लेट SRS बी पॉजिटिव एंड देन ऐड इट। इट्स अप टू यू, है ना, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है वो आप देखिए। लेकिन आई विल नॉट सेल इट इफ आई एम होल्डिंग इट ऑलरेडी। अगर मुझे निकलना होता तो बहुत पहले निकल गया होता, है ना, यहाँ कहीं। लेकिन अभी तक अगर होल्ड किया हुआ है तो मैं फिर और फर्दर इसमें करेक्शन मुझे नहीं नज़र आते। मोर देन करेक्शन, मुझे अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा नज़र आता है रादर देन डाउनवर्ड्स, है ना। तो आई विल होल्ड इट। तो कभी भी आप ऐसा कहते हैं ना, नुकसान हो ही गया अब तो, और अब इससे ज़्यादा नुकसान और क्या होगा, तो फिर दैट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट, है ना। और फिर हम इसलिए नहीं, हम इस स्टॉक को वैसे भी जानते हैं कि हाउ हाउ डज इट बिहेव, हाउ इट हैज़ परफॉर्म्ड, है ना, हाउ गुड दैट कंपनी इज, हाउ, सब कुछ अच्छा ही है। तो फिर वी शुड बी गुड। हाँ, इतना कुछ ओवर वैल्यू होने के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप भी कोई चीज़, जैसे आप इफ़ यू गो टू सम एग्जीबिशन, है ना, और वहाँ पे जो खाना है वो पहले जो है वो 100 रुपये का मिलता था, अगले दिन गए तो 120 रुपये का हो गया, फिर धीरे धीरे और भीड़ बढ़ने लगी तो 200 रुपये का हो गया। एक लिमिट है ना। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड, है ना। कम लोगों का इंटरेस्ट फिर हो जाएगा कि यार इतना महंगा यहाँ खाएंगे, इससे अच्छा तो हम कहीं और खा लेंगे। तो चीज़ों की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उतना लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता है, देन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट। तो वो फिर नहीं बाय करते उसको, इनफैक्ट सेल करना भी शुरू कर देते हैं कुछ लोग तो, डर की वजह से, जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। एंड दैट्स द रीजन दे शो करेक्शन। बट इफ सर यू इसमें जी जी जैसे
अगर इसमें जैसे कोचिंग शिपयार्ड की बात कर रहे हैं, अगर इसमें SRS नेगेटिव है, राइट, अगर हम्म, इसमें RM भी नेगेटिव होता 55, हम्म, देन आई थिंक फिर हम एंटर नहीं करते, फिर हाँ वी फिर विल वेट फॉर एरर, नहीं, राइट। फिर नहीं करेंगे, नहीं फिर नहीं करेंगे। हाँ देखिए ठीक आपके है। पास मान लीजिए योर डिसीजन इज बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स बीइंग पॉजिटिव, ठीक है। 4 पैरामीटर पॉजिटिव होते हैं तो मैं आई एम कंफर्टेबल। अब उसमें से कोई एक पैरामीटर नेगेटिव हो जाता है, सो दैट शुड नॉट बॉदर मी, क्योंकि वो हो सकता है फ्लक्चुएट हो रहा हो और वापस आ जाए। 2 हो जाते हैं, आई शुड स्टिल बी ओके। बट चारों के चारों हो जाते हैं, देन आई शुड बी कंसर्न। मैं जिस बेस पे घुसा था, वो 4 चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही थी कि हाँ ये अच्छा है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स है ना, मान लीजिए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अच्छा, ऊपर भी देखिए, हम इसको देख नहीं रहे साथ में। ईपीएस टी TTM is 101%, which that so shows something, right? We are very near to the result date as well, and it is showing some improvement before result. Return on investment actually कहाँ गया? Return on equity. Um, काइंड ऑफ दिस इज आई थिंक 1 ईयर। ट्रेडिंग व्यू वाले बताते नहीं कि, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि 1 ईयर का है कि 3 ईयर का है कि 5 ईयर का है। सो बिकॉज दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, आई वुड से 1 ईयर, है ना। 1 साल में 16% रिटर्न है। अब ये 3 साल का एवरेज है या क्या है? एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 12%, राइट? 12% इज गुड। अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का आप देखते हैं ऑन एन एवरेज, और वो 12% के ऊपर आता है, और बाकी चीज़ें भी ठीक हैं, यू शुड बी गुड। 12% बहुत होता है साल का कंपाउंडेड उसमें ना, तो दिस फाइन। और अच्छा है तो अच्छी बात है। बट इट इज़ इम्प्रूविंग, है ना। योर सेल्स इज इम्प्रूविंग ऑन TTM बेसिस, योर EPS is improving, so that's a good sign. PE is not very high, it is 45, so अभी करेक्ट हो चुका है, इसलिए PE इसका डाउन हो गया होगा। 45 इज नॉट वेरी हाई। जनरली 30 PE के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न आता है, बट इंडस्ट्री PE ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो यहाँ पर तो कंपैरिजन है नहीं, सो यू वांट टू चेक इट सेपरेटली। आइडिया ये है कि आप यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को देख रहे हैं, एंड व्हेन यू मेक योर सिलेक्शन कि हाँ ये 10 स्टॉक हैं जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, रिलेटिव परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द अदर फैक्टर्स, डिमांड एंड अदर, उसके बाद मैं फर्दर जाके उनको स्टडी करूँगा, एंड आई विल मेक माई चॉइस ऑफ 5 स्टॉक्स और सो। और उसमें भी फिर अगर कोई वैसा नहीं करेगा जैसे मैंने उम्मीद की थी, आई कीप ऑन ट्रैकिंग ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, मे बी क्वार्टरली बेसिस। और अगर नहीं करेगा तो आई टेक द सेम स्टेप्स एज वी टुक हियर, राइट? कि यहाँ से निकल के इसमें घुस जाते हैं। हर चीज़ आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगी। आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 विल नॉट परफॉर्म इन एनी केस, एंड द मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट इज 6, है ना, ऑन एन एवरेज, नॉट मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज 6 आउट ऑफ 10 विल परफॉर्म। कितना परफॉर्म करेंगे ये भी नहीं पता। इट मे बी 100%, राइट? और इट मे बी 80%, 40%, बट अदरवाइज वो आपको देखना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, एंड ऑन द फ्लाई फिर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे विच आर नॉट टू फ्रिक्वेंट। इट इज़ नॉट अ डेली थिंग, इट इज़ नॉट अ वीकली थिंग, इट इज़ नॉट अ मंथली थिंग, इट मे बी अ क्वार्टरली थिंग, बट लेना तो पड़ेगा हमने। यू हैव टू हैव अ बाउंड्री, एंड ऑल्सो यू हैव टू हैव दैट साइकिल ऑफ रिविजन। तो रिवाइज भी करना पड़ेगा, एग्जिट एंड एंट्री, इधर से उधर थोड़ा पोर्टफोलियो को शफल भी करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू नॉट डूइंग इट, तो आपने गेम को शुरू तो कर दिया, but you're not controlling it. If you're not controlling the game, then you're out of the game. ये बहुत सिंपल सा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो लोग भी हैं, ये उसका फंडा है, राइट? यू कैन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। मैंने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया, अभी बीच में मैनेज भी तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग द वे आई एक्सपेक्टेड दैम टू बी, देन आई हैव टू मैनेज। मैनेजमेंट इज द कोर। योर रिस्क मैनेजमेंट इसलिए कोर हो जाता है कि ले तो लिया बट अभी आगे क्या? अब खुला छोड़ देंगे तो फिर एनीथिंग कैन हैपन, and if anything can happen and you are ready for it, then fine, but then manage it well, you know. Any questions? ठीक है। मेरे ख्याल से वी आर गुड टू एडजर्न। और सैटरडे नेक्स्ट भी मेरा ट्रेनिंग है, संडे नहीं है, तो हम लोग संडे को मिलेंगे, एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको मैं, आई हैव देयर ID, so I'll add them and share it.
Thank you all. Thanks for joining. Thank you, sir. Okay, Thank you so ji. much. Okay. Bye bye. Bye all. Good night, sir. Good night, ji.